Hey guys, how you doing? So how are you? We can say it as how you doing. While speaking English, there aren't any strict rules which have to be followed. We can break certain rules, है ना? कभी कभी नियम तोड़ने में मजा आता है ना? तो कभी कभी तोड़ना है, बट नियम तोड़ना अच्छे के लिए तो अच्छा है, but it should not be done for the wrong reasons. It may bring ire of everyone. It may bring bad things for us. So we should not break the rules. So welcome back to the channel Endeavour English with Lifestyle with Ankur. We are once again back, and we are once again today going to read in this episode some important idioms for the upcoming board examination. So if you have not prepared the idioms, then kindly read, kindly study these episodes so that you prepare well for the upcoming board examination. So come on, let's start once again. So हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना समय बर्बाद किए हुए. समय बिताने के लिए पढ़ना है idiom. ठीक है? So let's study idioms. So today's first idiom of the day is at home in. एट होम इन का मतलब होता है घर पे होना. तो घर पे क्या होता है? हम आराम से होते हैं. तो जब हम आराम से होते हैं हम सब काम बहुत आसानी से कर लेते हैं विदाउट एनी ट्रबल. सो इट मींस एक्सपर्ट होना. ठीक है, घर में हम क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं. सो हाउ कैन वी मेक यूज ऑफ इट? आई एम कंप्लीटली एट होम in singing any song. तो मैं एक्सपर्ट हूं किसी भी तरीके का गाना गाने के लिए. ठीक है? कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए. This is a very beautiful song which is written on the setting of a day. ठीक है? The poet has mentioned how a day breaks. इसके ऊपर कविताएं भी लिखी गई हैं. ये गाना भी एक बहुत खूबसूरत सी कविता है. मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए. ठीक है? When sunshine creeps into the room quietly. ठीक है? As you notice that in the Khushwant Singh chapter, Portrait of a Lady, when the grandmother is no more, the sunlight quietly comes into the room and pays respect to the grandmother. याद है? यो grandmother को respect pay करती है. So the writer, the poet is just imagining. It's part of an imagination. ठीक? तो आज का नया या दूसरा idiom है hue and cry. Hue and cry का मतलब होता है loud and persistent cry. मतलब बहुत शोर मचाना किसी बात को लेकर, बार 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 एक ही बात कहते रहना, चीखते चिल्लाते रहना उसको लेकर. परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार. और लाउड तो आप जानते हैं, जोर से, है ना? Make some noise like Daisy boys. तो loud and persistent cry. So how can we make use of it in a sentence? People were making hue and cry over rise in prices outside the parliament. ठीक है? तो लोग इकट्ठे हुए बढ़ती हुई कीमतों के बारे में शोर मचा रहे थे. मतलब उस इशू को बार बार हाईलाइट कर रहे थे. So when we are talking about a particular issue continuously again and again and again, then it is hue and cry. So in this way we can make use of it in the sentence. The third idiom of the day is, आज का तीसरा idiom ये रहा. आपके बोर्ड
पे आपके कैमरे की स्क्रीन पर आज का थर्ड इडियम। तो थर्ड इडियम क्या है? टू गिव वंस ईयर्स। अपने कान निकाल के दे देना। निकाल के दो, लो ये लो भैया। जैसे कौआ कान ले गया वाली कहावत नहीं है ना? तो अपने कान निकाल कर दे देना। कान निकाल के दे देना का मतलब है कि किसी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? तो लिसन केयरफुली, ठीक? तो ध्यान से किसी बात को सुनना। जब कोई कुछ बात कह रहा है तो उसको ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने के फायदे हैं। क्या फायदे हैं? we get knowledge, we learn the right thing, we don't miss any points, so that we are not at loss later, है ना? तो to give one ears to listen carefully, students in the class are respected. Students आप लोगों से ही बनाते हैं। Students in the class, the की जगह I यूज कर ले क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। Students in the class are expected to give their ears। अब हमने देखिए their यूज किया, क्यों? क्योंकि हमने स्टूडेंट्स यूज किया था। तो इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज। तो स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एक्सपेक्टेड टू गिव द ears on the topic being taught। तो जो पढ़ाया जा रहा है उस पे ध्यान दें, ठीक है? उस पे ध्यान देना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पे स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए, अपने कान देने चाहिए। तो कान देने का मतलब है they should pay attention in the class so that whatever is being taught they are able to study properly। अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर समझ नहीं आएगा, तो फिर बाद में कहेंगे समझ नहीं आया तुझको, समझ नहीं आया तुझको, समझ आया? तो समझ नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए। कुछ बुझे कि नहीं बुझे? बुझे नहीं तो बुझ लो, ठीक है? अब आज का अगला क्या है? एक याद है हमने एक इडियम यूज किया था, डैगर्स ड्रॉन। तो डैगर में उसमें हमने क्या बताया था कि खुली शत्रुता होना, ओपन एनिमिटी होना। तो आज का दूसरा इडियम है। तो जब शत्रुता होती है तो हम क्या करते हैं? कड़वे बोल बोलते हैं। तो आज का इडियम नेक्स्ट है टू स्पीक डैगर्स। उसी से तो जहां पर चाकू आएगा वहां पर खराब चीज होगी। तो स्पीक डैगर्स का मतलब है टू स्पीक हार्शली, कड़वा बोलना। टू स्पीक हार्शली का मतलब होता है कड़वी बात बोलना। तो हाउ कैन वी मेक यूज ऑफ इट इन सेंटेंस? अ पर्सन शुड अवॉइड स्पीकिंग डैगर्स। किसी भी पर्सन को हार्श नहीं बोलना चाहिए। इसका मीनिंग है ये, a person should avoid speaking daggers। समझ में आया? Have you understood what I am trying to say? A person should avoid speaking daggers because if we are not polite in our behavior, if we are not dealing, if we are not talking politely, then the person might get rude or person may behave with us in a inappropriate way। इसलिए ठीक। अब नेक्स्ट इडियम देखते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। These are extremely foreign idiom. Besides, and I don't say that यही पढ़ने हैं केवल, आप बाकी भी एक बार एक नजर डालिएगा। You also pay a little attention to other idioms as well because I am not the maker of the paper, so I won't suggest that you only study what I am telling here. Make your proper preparation so that you do not lag behind in any area in the upcoming board examination. This is a creation. ठीक है। Now next idiom of the day is beat about the bush. Beat about the bush।
तो बुश झाड़ियां, झाड़ियों के पीछे कोई चीज क्या होता है, छुप जाती है। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है ट्विस्टिंग वे, घुमा फिरा के बात कहना, ट्विस्टिंग, ठीक है, समझ आया। झाड़ियां झाड़ों के पीछे छुप जाते हैं, तो ट्विस्टिंग वे ऑफ कमिंग टू अ पॉइंट, तो किसी भी बात को घुमा फिरा के कहना, स्ट्रेट फॉरवर्डली कोई बात ना करना, ठीक है। तो कपिल ऑलवेज बीट्स अबाउट द bush when I talk to him over any matter। तो कपिल कभी भी सीधी बात नहीं करता है, सीधी बात नो बकवास, तो वो तो सीधी बात नहीं बकवास करता है, हमेशा बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात करता रहता है, किसी भी बात का सही जवाब नहीं देता है, सही जवाब नहीं देता है। ठीक है। एंड नाउ फाइनली टुडे द लास्ट इडियम ऑफ द डे इज, आज का आखिरी इडियम जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन सा है, अ फेदर इन योर कैप। A feather in your cap। तो feather in your cap क्या है, प्राउड ऑफ one's achievement। अब आपने जो अचीव किया है उसके लिए प्राउड फील करना, कुछ अच्छा काम किया है, कोई प्राइज जीता है किसी कहीं पर कंपटीशन में किसी भी स्टेज पर, सो दैट इज कॉल्ड अ फेदर इन योर कैप। ये नहीं कि नॉर्मली तारीफ हो गई तो इट्स अ फेदर इन योर कैप, अनलेस यू आर तारीफ्ड, unless you are appreciated, unless you are appreciated in front of everyone, तब तक नहीं है feather in your cap। When you are given accolades, when you are appreciated in front of everyone, तारीफ करें सब लोग कि हाँ बहुत अच्छा बोला तुमने, you gave a fabulous speech, your drawing was brilliant and so on and so forth, that is a feather in one's cap। So how can we, मनु भाकर का नाम सुना है, मनु भाकर का नाम सुना है, एडेड, जिन्होंने भी ओलंपिक ब्रॉन्ज जीता था शूटिंग में, एडेड। तो फेदर इन द कैप का मतलब कैप है उसमें और पंख जोड़ना, तो जैसे कि मींस टू एड ऑन, टू डेकोरेट। सो मनु भाकर एडेड अनदर फेदर इन हर कैप व्हेन she got, क्या मिला उन्हें, पद्म भूषण मिला, अभी अनाउंस किए गए थे, when she got पद्म भूषण अवार्ड। तो जब उनको अवार्ड दिया गया पद्म भूषण, तो ये उनकी another feather in the cap था, ठीक है, उनका एक another achievement था which she should be proud of, ठीक है। So this is how you make use of these idioms in a sentence। इस तरीके से हम इनका सेंटेंसेस में यूज करते हैं। आपके लिए I have carved out these special idioms, so keep learning। And before I move, I would like to say that if we are dedicated towards a goal in whichever field we want to go, we definitely will gain success provided our efforts are 100%। हमारे efforts हमेशा 100% हो। आप किसी भी फील्ड में जाइए, another whatever person you want to be, but your goal should be 100%। 100% is also a medium, उसका मतलब होता है 100%। ठीक है, so that's all for the day। Good luck for the upcoming board examination। Till then, ciao।